Good evening to all of you. Good evening, sir. Sorry for delay because I was stuck some jam. Okay, so let us start our session today within some seconds. I'm sharing the today's topic. Yeah, so this MV006, we have completed Unit 1 to Unit 6, and that is all selling of product. What are the sales strategies? What are the sales planning? And what is the role of MR and all? What is personal selling? That we have already discussed. So today we will discuss negotiation skill. See, once a manager or a person who is dealing personal dealing, these negotiations take very important place because in the selling negotiation exist in term of price, in term of quality, in term of quantity. Negotiation has very important role. You must have seen when the product is being sold by the person and one person is buying this, so they always negotiate. Consumer always negotiate the price. Consumer always wants some kind of incentive, some kind of more and more. This more and more, the process, whole process that comes under the negotiation. So what are the negotiation skills and how it is different from selling? Is negotiation or selling are same? So we will discuss in this unit today. So let us take overview of this unit. Sorry. Negotiation is a fact of life. You must all are aware that everybody in every field is doing kind of negotiation. If you must have seen, even in family, if child is demanding something, then he or she always negotiate their parents to get the things done. So negotiation is the fact of life. It is the basic means of getting what you want from others. It is a two-way communication process designed to reach an agreement when the two sides have some interest that are shared and others that are opposed. मैंने अभी एग्जांपल दिया जैसे कि सपोज कीजिए अगर कोई चाइल्ड अपने फैमिली में कुछ डिमांड कर रहा है तो पेरेंट्स भी उसके साथ कुछ कहते हैं. बहुत सिंपल एग्जांपल, इफ द चाइल्ड इज डिमांडिंग फॉर साइकिल, 10th class or 6th class student is demanding, although this is the old story. Right now the child are not demanding cycle, they are demanding something others, kind of electronic gadgets and all. So take this example, if the child is asking some electronic gadget, some toys, some PlayStation, so parents always ask that do better in field of learning or education, or do something, your first behavior change like that. The child is also accept, yes I will do it, I will do it, I will do it, but just ये kind of ये जो process है, whole process, that is called negotiation.
अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल ऑफ द पर्सन है कि टू गेट द थिंग्स डन। हमें बस कुछ चाहिए, और उसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है दैट इज निगोशिएशन। सो निगोशिएशन को इसलिए कहा है कि निगोशिएशन इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। Negotiation is demanding activity, and the best way to learn it is to practice it with seasoned negotiation and get a personal feedback. तो ये negotiation के ऑल्दो ये बहुत कॉमन चीज़ है, हम चूंकि अपनी लाइफ में हर जगह देख रहे हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी नेगोशिएशन इज गोल अचीवमेंट। हमें बस कुछ चाहिए जो हम चाहते हैं, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नेगोशिएशन का यही है। बोथ साइड इन्वॉल्व इन नेगोशिएशन विल हैव देयर ऑन गोल। सबके अपने गोल हैं। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि, या एक बिजनेस फर्म का एग्जांपल लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है उसको सेल करना है, तो सबसे पहले नेगोशिएशन होता है। द पर्सन जो हु इज डीलिंग पर्सनल सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटर विद द फर्म एंड दिस फैक्ट्री, उन दोनों के बीच में नेगोशिएशन होता है कि आपके प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे, देन व्हाट विल बी आवर इंसेंटिव, what will be our perk, what will be our wages. So this is the negotiation. And the same time it is exist also within the seller and buyer, दोनों के बीच में, यानी दो लोगों के बीच में, दोनों अपनी विन विन सिचुएशन चाहते हैं। जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो भी चाहता है कि उसको कुछ प्रॉफिट हो, और जो बाय कर रहा है उसको वो भी चाहता है कि उसको कुछ एडिशनल मिले, उसको एडिशनल फीलिंग मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, या कुछ चीज़ें उसको क्वांटिटी ज़्यादा मिले, या कॉस्ट उसको थोड़ी सी कम हो जाए, सम डिस्काउंट्स उसको मिल जाए। सो दिस होल प्रोसेस कॉल्ड एज नेगोशिएशन। हाउ दिस स्किल हैज़ लिमिटेड और वेरी रेयर यूज ऑफ फार्मा। नेगोशिएशन का, हाँ, अगर आप मेडिकल फील्ड की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, तो नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वो एमआर और डॉक्टर्स के बीच में बहुत बस उन्हीं के बीच में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कॉमन प्रोसेस। आप देख रहे हैं कि अगर मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, अगर आपको दवाई का जितना पर्चा लिख गया वो लिख गया, उसके बाद में आप फर्दर कहेंगे आप इतना ले लीजिए, इतना ले लीजिए। दैट नेगोशिएशन प्रोसेस डोंट हैव नॉट एनी प्लेस इन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल फील्ड। वो अपने आप जो डिस्काउंट आपको दे दें, उनका सेट है कि आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा मेडिसिन पर, इतना इस पर मिलेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट डू फर्दर नेगोशिएशन। लेकिन एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज ए दिस फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट का जो लर्नर के रूप में भी, प्रैक्टिशनर के रूप में भी, वी शुड अवेयर व्हाट इज नेगोशिएशन। सो इस टॉपिक, इस चैप्टर में हम लोग, हालांकि हम लोगों ने नेगोशिएशन के बारे में एक ओवरव्यू लिया, फर्दर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज how it is defined by the various practitioners, authors and experts. अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन, इसको हम डिफरेंट क्या क्या स्टेप्स होते हैं नेगोशिएशन के वो भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या स्किल्स होते हैं नेगोशिएशन के वो भी डिस्कस करेंगे, एंड मेक द यूज ऑफ नेगोशिएशन स्किल इन सेलिंग प्रोसेस। बेसिकली द मेन ऑब्जेक्ट है हमारा कि टू सेल द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट को सेल करने के सेलिंग इज इम्पोर्टेंट। उस सेलिंग में हमारी नेगोशिएशन किस तरह से हमें हेल्पफुल होगी, किस तरह से हमें ये मदद करेगी, दैट वी विल टेक अकाउंट ऑफ इन दिस चैप्टर। सो व्हाट इज नेगोशिएशन? नेगोशिएशन हमने कहा है कि ये दो लोगों के बीच में एक काइंड ऑफ समझौता है कि दोनों एक दूसरे को विन विन सिचुएशंस में रखेंगे, दोनों को अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं, एज ए बायर, एज ए सेलर। So negotiation can be defined as a process for resolving conflict between two or more parties where both or all modify their demands to achieve a mutually acceptable solution. दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, म्यूचुअली एग्रीड हो, दोनों को एक्सेप्टेबल हो, इस तरह का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन। यू मे नोट फ्रॉम दिस डेफिनेशन सम ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ नेगोशिएशन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेगोशिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, यस वो डेफिनेशन में ऑलरेडी दिया है। एंड इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो नीड ऑफ नेगोशिएशन। यस, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, अगर कोई चीज़ बाजार में, मार्केट में कोई चीज़ मिल रही है किसी भी प्राइस, जो प्राइस पर मिल रही है, सेलर इज
comfortable and a buyer is comfortable with respect to price, quality, and quantity, then there is no negotiation. There is a need to resolve conflict, more so with our customers. If we don't resolve conflict, we may even lose them. Yes, क्योंकि हमारा जो प्राइम जो सेंटर पे जो है वो है डेट इज क्लाइंट, कस्टमर, कंज्यूमर। वो उसकी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना एज ए मैनेजर, एज ए सेलर, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम अपने कस्टमर के कॉन्फ्लिक्ट से दूर करें। और अगर हम अपना उनका कस्टमर का कॉन्फ्लिक्ट दूर नहीं कर पाते तो दिस इज फैक्ट कि वो कस्टमर हमसे छूट जाएगा, वी विल लूज फ्रॉम आवर प्रोडक्ट। Negotiation does not mean persuading the other to accept our offer. Rather, we should listen to other and their proposition. If possible, modify one stand or suggest guide the others to modify their demand. Yes, क्योंकि म्यूचुअली एग्रीड की बात हम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ चाहा, हमने कुछ उनको ऑफर किया, ये लेकिन हम ये परसुइंग वाली चीज नहीं कि नहीं आपको लेना ही होगा, आपको लेना ही होगा। ये तभी पॉसिबल है कि जब उनकी अगर कुछ डिमांड हम पूरा करें, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हम लोग अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एंड एनी पॉइंट अगर दोनों लोग म्यूचुअली एग्रीड हो जाते हैं तो नेगोशिएशन डन, उसके बाद में वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, उसको मनी मिल जाएगी जिसने बेचा, और उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसने खरीदा। Though negotiation, we try to reach a mutually acceptable compromise to solve a problem. तो बेसिकली negotiation क्या है कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल है और हमारी प्रॉब्लम, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सेलर की भी और बायर की भी। और अगर आप गोवा की एग्जांपल देखें तो वहाँ अगर मैंने एक फैमिली का एग्जांपल दिया है कि वहाँ पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि उन्होंने बच्चे को मोटिवेट कर दिया कि उसको और आगे पढ़ना है, मेहनत करनी है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सो एंड। बच्चे को भी हो गया कि अब मुझे साइकिल मिल गई, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है। तो ये म्यूचुअली, और ये नेगोशिएशन टेक प्लेस एवरीवेयर। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड नेगोशिएटिंग। सी, सेलिंग इज द काइंड ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड नेगोशिएशन इज सबसेट। अगर मैथमेटिकल कहें तो नेगोशिएशन इज सबसेट ऑफ सेलिंग। Both cannot be used as a synonyms, both cannot be used as a alternative of each other. No, सेलिंग एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उनमें से एक है नेगोशिएशन। सो व्हाट इज सेलिंग? सेलिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स, देन गेटिंग थ्रू them and persuading them to act and accept our proposition. Whereas negotiating is a process to getting the best terms once the other side start to act on their interest. यहाँ पे क्या है, हम अपने कस्टमर को बेस्ट, नेगोशिएशन में अपने कस्टमर को हम लोग बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं। मीन्स प्राइस हम लोग उसको कम कर सकते हैं, क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं, उसको फर्दर कोई इंसेंटिव के रूप में, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया में देखा है तो बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, इस टाइप के ये सब नेगोशिएशन है। One important point to keep in mind that negotiation is just not stating a grievance and point of conflict. You must have experience. Complaints at the best can produce apologies, and at worst they lead to argument. In negotiation, what we really want to suggest or encourage a proposal which will put things right and take the party concerned to acceptable solutions. जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि negotiation दोनों पार्टीज को, दोनों लोगों को एक्सेप्टेबल जो भी सॉल्यूशन होगा वही नेगोशिएशन है। इन द सेलिंग सिचुएशंस, whenever the buyer and seller differs on term on sale, be it price, discount, term and place of delivery, a negotiation opportunity arises. मीन्स जैसे हम पहले भी कह रहे हैं कि अगर आप एज ए सेलर अपने प्राइस को घटा लेते हैं, अपने उनको प्रॉमिस करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप, उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं या अगर फर्दर को उसको इंसेंटिव स्कीम देते हैं, तो दिस इज द पार्ट ऑफ नेगोशिएशन।
या negotiation continuum क्या है जी? Negotiation involve movement of both the parties. Thus, in a negotiation, we must have somewhere to move from somewhere to move. यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लोग, यानी कि पहले हम लोगों को कुछ टर्म एंड कंडीशन थी, उसके बाद में हमारी टर्म एंड कंडीशन आफ्टर टेकिंग द नीड एंड एटीट्यूड ऑफ द बायर, तो उसके बाद में दोनों एक म्यूचुअली एग्रीमेंट करते हैं ताकि वो हमारे जो दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो। आवर अपोनेंट आल्सो डज एग्जैक्टली द सेम, चूंकि वो भी सेम करता है। पहले वो रिजिड होता है, उसके बाद में लगता है कि नहीं, अगर वन पार्टी इज गिविंग समथिंग डिस्काउंट एंड काइंड ऑफ चीप बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी, तो दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके दोनों एग्री हो जाते हैं उस चीज को खरीदने के लिए और दूसरा बेचने। इट इज ए रिलेटिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ एंड स्किल ऑफ नेगोशिएटर दैट डिसाइड ए पोजीशन दैट सेटलमेंट पॉइंट। दोनों का सेटलमेंट होता है। ये एक एग्जांपल दिया, एक आइडियल है, ये लिमिट है, ये बार्गेनिंग एरेना है। ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, पहले ए भी चलता है बी की तरफ, बी चलता है ए की तरफ, एंड दिस, ये जो स्क्वायर बने हुए हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ काइंड ऑफ सेटलमेंट, जहाँ पर दोनों के दोनों लोग एग्री हो जाते हैं कि यस वी विल परचेज एंड आई विल परचेज एंड आई विल सेल। द सैंपल डायग्राम इज स्टैटिक नेगोशिएशन इन रियलिटी हाउएवर इज डायनेमिक प्रोसेस। ये जरूर इन दोनों बराबर चलें, इसमें कोई ज़्यादा कोई कम चल सकता है, जहाँ भी दोनों का सेटलमेंट हो जाए। In a pharmaceutical marketing, the medical representative negotiate with the wholesaler, distributor। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि एज ए मेडिकल उसको negotiation take place एवरीवेयर। एक फर्म का मैनेजर उसको डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, फर्म मैनेजर डिस्ट्रीब्यूटर में नेगोशिएशन होना है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर के बीच में नेगोशिएशन होना है, रिटेलर फिर पर्सनल सेलिंग, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या जो पर्सन है जो पर्सनल सेलिंग डील कर रहा है, उन दोनों के बीच में नेगोशिएशन होना। फर्दर जो सेलिंग पॉइंट है, दैट में बी द रिटेलर, दैट में बी द पर्सनल सेलिंग पर्सन, एंड क्लाइंट, कंज्यूमर, कस्टमर, इन दोनों के बीच में भी नेगोशिएशन होना है। तो दिस नेगोशिएशन टेक प्लेस एवरीवेयर। इफ यू लुक एट द अबव कंटिन्यूम, जो इसमें बताया था कि दोनों लोग एक दूसरे को चल करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के दोनों सेटल होते हैं। सेल्स प्रोसेस, एज ए सेल्स पर्सन यू डील योर आइडियल पोजीशन टू सेट योर प्रोडक्ट। यहाँ बेसिकली वही बताया इसमें कि एक आप सेलर हैं, तो सेलर में आप चाहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचे जाए, और इसका एक पॉइंट ये भी है, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है कि मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम हमारे प्रोडक्ट बेचे जाएं। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है, इससे क्योंकि आपने कस्टमर की नीड एंड कस्टमर के इंटरेस्ट, कस्टमर के एटीट्यूड को नहीं अभी एनालाइज किया है। इसीलिए ये जो चार्ट जो शो किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहाँ पे दोनों लोगों की ये एग्रीमेंट होता है वही सेम पॉइंट ऑफ सेटलमेंट होता है। नेक्स्ट है कि स्टेप्स ऑफ नेगोशिएशन, क्योंकि ये भी एक काइंड ऑफ, ऐसे नहीं है कि सिंपली नेगोशिएशन कर लेते हैं, ये हैज़ वेरियस स्टेप। उसके बाद में चूँकि आपने देखा होगा कई बार एक सेलर है, उसने अपने किसी भी प्रोडक्ट का दाम, कॉस्ट कुछ डिसाइड किया है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आती हैं कि लंबे टाइम तक उसका प्रोडक्ट नहीं सेल हुआ। देन फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे कुछ और स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए सो दैट माय प्रोडक्ट शुड बी सेल आउट। अब इसमें नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द नेगोशिएटिंग प्रोसेस फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस इज ब्रोकन डाउन इनटू द फॉलोइंग स्टेप, यानी क्या क्या स्टेप्स हैं नेगोशिएशन के। इफ एग्रीमेंट इज टू बी रीच्ड, हाउएवर, please keep in mind that this is not a rigid order and time attention devoted in different। तो ये जो बेसिकली एक चार्ट इन्होंने बनाया है जिसमें हमने नेगोशिएशन के बहुत सारे स्टेप्स को
बताया कि किस तरह से हम निगोशिएशन करते हैं। एक सेकंड, जरा होल्ड फॉर ए मोमेंट। Yes. So this the process of negotiation. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द सेलर prepare the customer, then he discuss something for the selling the product, means price, quality, quantity. Then उसको उसका he see that but whether the customer is slightly agree or kind of motivation is there or giving some positive response. So then he or she propose to सेल द प्रोडक्ट। उसके बाद में वो ऑफर देता है कि दिस इज द ऑफर, आपको इतना रेट लगेगा, आपको क्वांटिटी होगी, आपकी क्वालिटी होगी। यहाँ तक अभी तक वट एवर इज डूइंग दैट इज द सेलर इज डूइंग। एट द पॉइंट ऑफ बार्गेन बायर स्टार्ट कि नो दीज आर माई एक्सपेक्टेशंस, मेरा इतना रेट होना चाहिए इस प्रोडक्ट का, इतना मुझे इसमें और इंसेंटिव मिलना चाहिए। एंड बार्गेनिंग प्रोसेस के बाद देन क्लोज एग्री, दोनों लोग एग्री हो जाते हैं। वन इज रेडी फॉर सेलिंग एंड सेकंड इज रेडी फॉर बाइंग। सो दिस इज द डिफरेंट स्टेप ऑफ निगोशिएशन। इसको अलग अलग डिटेल में बताया है कि प्रिपेयरिंग पहले हैव यू डिसाइडेड योर ऑब्जेक्टिव, हैव यू प्रायोरिटाइज देम, आर दे रियलिस्टिक, what are your opponent's objective, do you have any information regarding buyer's attitude, personality, assumptions, is your strategy simple or flexible, is in a group negotiation, have each member's task have been clearly defined. So यहाँ जो सेलर है that is who is preparing the buyer, तो ये सारी चीज़ें उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फर्दर वो डिस्कशन क्या करेगा, वो अपने डिस्कशन में ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड इंटरप्टिंग, टॉकिंग टू मच, यूजिंग दिस सर स्कैम एंड थ्रेट्स, वो अपने कोई थ्रेट्स नहीं देगा। प्रैक्टिसिंग लिसनिंग एंड समराइजिंग, फिर उसके बाद में सिग्नलिंग, मीन्स सिग्नल मिलेंगे उसको बायर की तरफ से कि वो एग्री है या नहीं है, उसकी चीज़ों को सुन रहा है नहीं सुन रहा है, अब थोड़ा भी पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है, जैसे मैंने कहा। देन सेलर विल प्रपोज, उसके बाद में अपने आइटम को दिखाएगा, उनकी क्वालिटी को बताएगा। देन ऑफर, उसके बाद में प्राइस के रिगार्डिंग या क्वालिटी के रिगार्डिंग या क्वांटिटी के रिगार्डिंग ही विल गिव सम ऑफर टू द बायर। देन बार्गेनिंग टेक प्लेस, यहाँ से बार्गेनिंग में दोनों का रोल एक्टिव होता है, सेलर का भी एंड बायर का भी। उसके बाद में क्लोज एग्रीमेंट हो जाता है, दोनों लोग म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं एट वन पॉइंट, इन टर्म ऑफ कॉस्ट, इन टर्म ऑफ क्वालिटी, इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। ये है आपका होल प्रोसेस ऑफ दिस निगोशिएशन। उसके बाद में इनको फर्दर डिफाइंड किया है। प्रिपेयर, मैंने अभी आपसे बात किया, प्रिपेयरिंग मीन्स किस तरह से प्रिपेयर करता है वो, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे।
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा वो प्रोडक्ट के बारे में, स्ट्रेटजी, अपनी कोई स्ट्रेटजी प्लान आउट करेगा किस तरह से हमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, डिफरेंट टास्क वो लेगा, यानी कि डोर स्टेप जाएगा या कोई अपना कोई बैनर का यूज करेगा टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, या कोई लीफलेट बनाएगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। या फिर अगर दो चार एक दो लोग से ज़्यादा है, ग्रुप में है, तो वो डिस्कशन करेगा, आर्ग्यूइंग करेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। दीज ऑल आर जॉब ऑफ सेलर। सिग्नलिंग बिहेवियर मीन्स वही कस्टमर का बिहेव वो एनालाइज कर रहा है, सेलर की किस तरह का बिहेवियर, वेदर ही इज रेडी टू परचेज, वेदर he or she is showing some positive interest to take the product। ये सब वही प्रपोजिंग, सब उसी के बारे में, प्रपोज कर लिया अभी हमने पढ़ लिया है। देन फिर ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, किस किस टाइप के ऑफर वो देगा, बार्गेन किया, फिर देन उसने बार्गेनिंग के बाद ही फिर आपका सेल क्लोजिंग एंड एग्रीमेंट होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ देयर आर सम नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज। During the negotiation process, as the discussion happen, you would have be reacting to the other party's contents in various way. However, three natural reactions are commonly observed in people। तीन जो रिएक्शंस हैं वो होते हैं। पहला है स्ट्राइक बैक, गिव इन, ब्रेक ऑफ। पहले में अगर स्ट्राइक बैक की बात करें, इन दिस स्ट्रेटजी यू रेस्पॉन्ड टू योर कस्टमर इन द सेम टोन एंड लैंग्वेज एज ही इज डूइंग टू यू। वैसे ये नहीं करना चाहिए। ओकेजनली स्ट्राइकिंग बैक विल शो योर पर्सपेक्टिव दैट यू कैन आल्सो प्ले ए सेम गेम एंड विल मेक हिम स्टॉप। लेकिन हमें आपको उसको चुप नहीं कराना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, हमें तो उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। बट मोर ऑफन दिस स्ट्रेटजी विल लैंड यू इन ए फ्यूटाइल एंड कॉस्टली कन्फ्रंटेशन। ये नेचुरल है कि जो हम निगोशिएशन करते हैं तो ये इस तरह का हमारे रिएक्शंस हो सकते हैं एज ए सेलर। गिव इन, मैनी टाइम योर कस्टमर विल सक्सीड इन मेकिंग यू फील so uncomfortable with negotiation that you give in just to be done with it, giving in result in an unnecessary outcomes, especially for you. Giving in also gives you a reputation for weakness that your opponent and others may try to exploit in the future। गिविंग का मतलब यही है कि आप ग्रुप में अगर खड़े हैं तो आपके जो कस्टमर हैं, जो क्लाइंट हैं, वो आपको उतना अजीब अजीब डिमांड करेंगे जिसको आप भी पूरा करने में असमर्थ, एंड यू विल, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। और ऐसे में कई बार आपने देखा होगा कि वो जो सेलर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना कमा के वो छुटकारा पाना चाहता है कि इसको गिव इन करिए और मैं जैसे भी हो सकता है इस प्रोडक्ट को निकाल देता हूँ ताकि, और यहाँ से मैं निकलूँ। ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं। थर्ड है ब्रेक ऑफ। At times the negotiation process can come to such a stage that avoidance is perfectly appropriate strategy. Sometimes it is better to end a business relationship if continuing we are being taking advantage of getting into fights again and again, but the cost of a break are often high। Breaking off is frequently a hasty reaction that you come to regret later। ये भी वही है कि पहला जो था उसमें जो सेलर था और बायर था, दोनों की टोन एक जैसी थी, दोनों ने एक दूसरे के साथ सेम बिहेवियर किया, तो ऐसे में हमारी सेलिंग नहीं हो पाती है। दूसरे में सेलिंग गिवन में हुआ कि वहाँ पे बहुत ही वो तरह से अनकंफर्टेबल फील करता है। और थर्ड में तो बिल्कुल दोनों का जो वो निगोशिएशन जो चल रहा था वो एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक ऑफ, वो टूट जाता है कि चूँकि उसमें आपने बहुत बार देखा होगा, वंस अपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा, इफ द पर्सनल सेलर इज कमिंग एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर, तो कई बार क्या है, वो जो बायर है वो ऐसे प्राइस लगाता है, ऐसे डिमांड करता है, वो सेलर को एक्सेप्टेबल नहीं होती और ही और शी गॉट अ फंड, और उसमें दोनों लोग अफंड हो जाते हैं और दोनों में कई बार फिर वो काइंड ऑफ ये
फाइट्स का भी रूप ले लेती है वो। तो ये तीनों जो है ये एक्चुअल वो हैं जो रिएक्शंस हैं, नेचुरल रिएक्शंस होते हैं बार्गेनिंग में, सॉरी निगोशिएशन और बार्गेनिंग सेम है। सो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, क्या अच्छी चीज़ हो सकती है। एक तो जब टोन की बात आती है तो टोन में जब हम निगोशिएटिंग की बात कर रहे हैं तो द सेलर शुड बी ए गुड कम्युनिकेटर। उसकी जो टोन है वो स्लो होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब पर्सनल सेलर की क्या क्या क्वालिटीज हैं। एज वी स्टेटेड अर्लियर, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेगोशिएशन शुड बी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज एंड दिस रिक्वायर दैट यू शो एम्पैथी विद द अदर पर्सन। तो सेलर एंड बायर को एक दूसरे के प्रति एम्पैथी रखनी चाहिए। इफ वी कंसीडर एम्पैथी एंड ओवरऑल प्रोजेक्शन हाउ यू केम ओवर टू अदर्स बाय द अदर, मीन्स दोनों को, अगर कोई बायर है वो अगर हाई टोन में बोलता है तो सेलर को उस टोन में नहीं बोलना चाहिए और उसको थोड़ा सा काइंड काल्म करना चाहिए कि उसको थोड़ा कूल डाउन करें। वी हैव वी कैन हैव 4 काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस। ये देखिए बेसिकली दो लोगों के बीच में, सेलर एंड बायर के बीच में एक चार्ट को बताया है ये। हाई प्रोजेक्शन, लो एम्पैथी, हाई प्रेशर, लो एम्पैथी, लो प्रोजेक्शन, लिटिल इंटरेस्ट, हाई एम्पैथी, लो प्रोजेक्शन, वीक, हाई। ये इस तरह से दोनों के बीच का जो पॉसिबिलिटीज हैं वो इसमें दिखाई हैं। टाइप 1 हाई प्रेशर कम्युनिकेटर, अगर आपका जो कम्युनिकेटर है वो हाई प्रेशर, वो डेफिनेटली नहीं होगा दोनों के बीच में डीलिंग। लिटिल इंटरेस्ट कम्युनिकेटर, अगर दोनों का इंटरेस्ट ही नहीं है, या वीक कम्युनिकेटर है, या आइडियल या असर्टिव कम्युनिकेटर है। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें बेस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि दोनों लोगों को एक्सेप्टेबल सिचुएशंस पे एक दूसरे के साथ एग्री होना चाहिए, ताकि वो निगोशिएशन जो दैट शुड टेक प्लेस एट ए गुड प्रोजेक्शन। कुछ प्रिंसिपल्स हैं निगोशिएशन के, ऑल्दो ये कुछ नए नहीं है। वही निगोशिएशन इज अबाउट बार्गेनिंग टू रीच ए म्यूचुअली एग्रीमेंट आउटकम, दोनों को एग्री हो ऐसे पे, दोनों को विन विन सिचुएशन हो, ये प्रिंसिपल है। नेवर निगलेक्ट योर प्रिपरेशन एंड यू मस्ट हैव ए क्लियर प्लान। निगोशिएशन जब भी आप सेलिंग करने जाएं, इट मीन्स ये तो बहुत क्लियर है कि निगोशिएशन आपको करनी पड़ेगी, देन यू मस्ट हैव योर प्लान, और प्लान भी ऐसा हो जो दूसरे को एक्सेप्टेबल हो, या फिर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पॉसिबल हो, ताकि दोनों एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंच पाए। ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द नेगोशिएशन मस्ट रिगार्ड ईच अदर, यस, दोनों को रेस्पेक्ट देनी है, गुड कंडक्ट करना है। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट नेगोशिएशन इज नॉट डिबेट और बट ए डिस्कशन। ये डिबेट नहीं है नेगोशिएशन, ये सिर्फ डिस्कशन है कि हम अपने दोनों की म्यूचुअली एक्सेप्टेड सिचुएशन तक पहुंच जाएं, ना हमें लॉस हो, यानी कि जो सेलर है उसको लॉस ना हो, वो भी प्रॉफिट विन विन सिचुएशन में रहे, और जो बायर है वो भी विन विन सिचुएशन में रहे। पेशेंस इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नेगोशिएशन। आपने देखा हो कई बार जो बायर है वो कुछ भी रेट लगाए, बट जो आपका जो सेलर है वो ऑलवेज स्माइलिंग करता रहेगा और बाद में अपना निगोशिएशन स्टार्ट करता रहेगा। एम्पैथी इज अनदर वाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स, therefore see things from others point of view objectively। हमेशा सेलर को भी सोचना चाहिए कि अगर मैं बायर की जगह हूँ, या बायर की जगह सोचना सेलर को कि मैं अगर सेलर की जगह हूँ तो मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी और मुझे क्या क्या चाहिए होता है। तो अगर एम्पैथी होगी तो वो एक म्यूचुअली एग्रीमेंट लेवल पर आ जाएगा। सब वही है, स्टेट क्लियरली, आप अपने ऑब्जेक्टिव बता दीजिए आपको कितने का बेचना है, कन्फ्रंटेशन अवॉइड करिए, हाई एम मत रखिए कि मुझे आज सारा ही बेचना है, अभी बेचना है, नो, स्टेमिना मेंटेन रखिए, एंड अंडर एस्टिमेट मत करिए पीपल को, और कोई भी नेगोशिएशन है उसको पॉजिटिवली उसको एंड कीजिए कि दोनों लोग खुश रहें, दोनों विन विन सिचुएशन में रहें। तो ये नेगोशिएशन का एक टॉपिक हमने कवर किया। इसके बारे में दूसरा टॉपिक लेते हैं एक छोटे से
30 सेकंड के ब्रेक में। आज हम थोड़ा लेट हैं तो कवर कप करेंगे हम तीनों को, ये तीनों के तीनों कवर अप हो जाए। Yes, this is our 8th unit, handling of promotional tools. प्रमोशनल्स आपने जैसे देखा हो, मार्केटिंग मिक्स के बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें प्रमोशंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ मार्केटिंग, of selling product or personal selling, whatever activities involved in a business, this promotional activities is very important, बिकॉज प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के बिना हम लोग अपनी मार्केटिंग या अपना प्रमोशन नहीं कर पाते अपना प्रोडक्ट का। तो देर आर सम स्पेसिफिक टूल्स, उन टूल्स को हम किस तरह से हैंडल करेंगे उसको थोड़ा, जैसे हमने देखा होगा प्रमोशन हम पहले कैसे करते थे, मैंने कल परसों भी आपसे डिस्कस किया। इन अर्ली डेज हम लोग जो टीवी सॉरी कौन सा ये आपका ज्ञान दर्शन आता था, या टेलीविज़न पर जो बहुत एक दो ही सीरियल्स आते थे, उसके बीच बीच में आपके ऐड आते थे, वो एक प्रमोशन का सिर्फ एक जरिया था। दैट टाइम टू कॉस्टली। या फिर सिनेमाज में बीच बीच में ऐड आने लगे, उसके बाद में प्रिंट मीडिया, उसके बाद में तो अब देखिए प्रमोशन के बहुत सारी चीज़ें, टीवी, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, सोशल मीडिया, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ हर जगह आपका प्रमोशनल एक्टिविटी देखने को मिल जाएंगे। सो कौन कौन से टूल्स हैं वो, हालांकि हम लोगों के पास ओवरव्यू है ऑलरेडी, हम सब जानते हैं, क्योंकि इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं प्रमोशंस पर, मार्केटिंग पर। हैंडलिंग ऑफ प्रमोशनल टूल इज an integral part of advertisement and sales promotion for any pharmaceuticals brand. These are important features used to promote the sale of the product. Advertising is one hand is the form of mass media communication directed, यानी कि एडवर्टाइजिंग एक टूल है जिससे हम प्रमोशन करते हैं, directed towards influencing and the end consumer, whereas sales promotions on the other hand deals with other mass communication directly towards informing and influencing the channel of distribution. आपने देखा होगा कि एक प्रमोशन आपने ऑन द रोड भी देखे होंगे आपने, वो जो लगे रहते हैं, फ्लैक्स लगे रहते हैं, या एक साइनिंग्स इंफॉर्मेटिव जो लगे रहते हैं बोर्ड, जिसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में, डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट सर्विसेज के बारे में होल्डिंग्स लगे होते हैं बड़े बड़े। न्यूज़पेपर में भी लीफलेट आपको देखने को मिलेंगे, न्यूज़पेपर में प्रॉपर न्यूज़ के रूप में आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा। तो ये सब ये टूल्स हैं आपके प्रमोशंस के, इनको कैसे हैंडल करना है अब वो हमें समझने की जरूरत है। तो कई बार क्या है कि हम गलत तरीके से अगर उसको हैंडल करेंगे तो इसके
इन लॉस ज़्यादा हो जाएंगे रेदर देन प्रॉफिट। तो इसमें मिसप्रिंट हो गया सर, ऑब्जेक्टिव नहीं बताए हैं। यस, सो जितने भी हम प्रमोशनल टूल्स की बात कर रहे हैं, जैसे टीवी है, मोबाइल्स हैं आपके, सोशल मीडिया है, सिनेमाज हैं, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, दीज आर द टूल्स। लेकिन इसेंशियल फीचर्स गुड प्रमोशनल टूल्स के क्या होने चाहिए, उसको हम पढ़ लेते हैं। द टेक्स्ट और बॉडी ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज नॉन एज एडवर्टाइजिंग कॉपी। इट कंटेन्स हेडिंग, मैसेज, एडवर्टाइजर नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ एटसेट्रा। जैसी एडवर्टाइजिंग किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो होर्डिंग्स के रूप में हो, पंपलेट के रूप में हो, न्यूज के रूप में हो, या जो फ्लैश जो आते हैं टीवी में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके रूप में हो। इनकी क्या क्या क्वालिटी हैं? एडवर्टाइजिंग कॉपी शुड बी केयरफुली ड्राफ्टेड सो एज टू इंक्लूड द फॉलोइंग इसेंशियल फीचर्स। क्या इसेंशियल फीचर हैं जी? It should be made attractive by using pictures and headline, attractive brands, etc. Means कोई भी एडवर्टाइजिंग आप पंपलेट, लीफलेट या कुछ भी बना रहे हैं, तो वो एक तो उसमें जो हेडलाइन प्रॉपर हो, ब्रांड जो आप शो कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव हो, और लोगों को समझ में आए। पता लगा कि आप अगर चले गए किसी ऐसे जगह जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है और वहाँ पे हिंदी की आप होर्डिंग लगा देंगे, तो वो भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। एज टू मेक पीपल रीड, उसको लोग पढ़ पाएँ, देख पाएँ, या अगर वो सोशल मीडिया पे या ऑडियो वीडियो है तो उसको सुन पाएँ। इट शुड क्रिएट ए परमानेंट इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ पीपल। इतना वो अट्रैक्टिव हो कि लोगों के माइंड में वो एक तरह से प्लेस कर जाए, लोग उसको भूल ना पाए। रिपीटेड यूज ऑफ ब्रांड नेम ऑफ ट्रेडमार्क, आपने देखा, इसलिए बार बार ये जो एडवर्टाइजमेंट है बार बार रिपीट होते रहते हैं ताकि लोग उसको भूल ना पाए। इट शुड गिव यूजफुल सजेशंस टू द पब्लिक। जो भी आप इवन होर्डिंग्स में, एडवर्टाइजमेंट में, मतलब यूजफुल सजेशंस भी दें। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ विक्स 500 टैबलेट सजेस्ट दैट इट यूज फॉर कोल्ड एंड कफ। प्रॉपर इंफॉर्मेटिव हो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, और उसमें जो उसकी क्वालिटी है उसको भी डिस्क्राइब करता हुआ होना चाहिए। इट शुड एडुकेट the pupil about the use of product and its benefit. For example, in the advertisement of baby milk powder, the instructions for preparing milk are required। यानी कि जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है उसमें उस प्रोडक्ट को यूज करने का प्रोसेस भी होना चाहिए। मीन इट शुड इंफॉर्मेटिव इन ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। It must contain solid arrangement and proof to convince the customer about the superior quality product की सर्टिफिकेशन होना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल लिखा होगा कि सब में लिखा होता है FSSAI सर्टिफाइड, उसमें बहुत क्लियर लिखा होता है। अगर कोई टैबलेट है तो उसमें भी लिखा होगा कि ये आपकी जो टैबलेट है, इसमें दिया एनासिन टैबलेट रिलीफ पेन फास्टर एज इट इज माइक्रोफाइंड, प्रॉपरली माइक्रोफाइंड है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें सर्टिफिकेशन है कि ये इस डेट तक वैलिड है, FSSAI द्वारा इसकी क्वालिटी एग्जामिन की गई है, स्टैंडर्ड, इट इज अप टू द स्टैंडर्ड। इट शुड क्रिएट द नीड फॉर द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ पीपल। लोगों की नीड अराउज करे एडवर्टाइजमेंट कि यस हमें भी ये लेना चाहिए। इट शुड इंड्यूस पीपल टू बाय द एडवर्टाइज प्रोडक्ट। तो ऐसा एडवर्टाइज कर रहे हैं आप कि लोग उसको खरीदने के लिए रेडी हो जाएं, लोग उसको खरीदें। एडवर्टाइजमेंट ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कुछ क्वालिटी हैं एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट कहिए या इसको प्रमोशनल टूल्स कहिए, इसका एडवर्टाइज, इसका मार्केटिंग का। ये प्रमोशन का एक टूल है। इसमें डिफरेंट टूल्स के बारे में बताया। विजुअल टूल आपने देखा होगा, जैसे आपने को जो ऐसा टूल जो दिखाई देता हो, जैसे जैसे मैं बात कर रहा था लीफलेट, वो दिखाई देता है।
सुनाई नहीं देता, वो कुछ बोलता नहीं है, वो जस्ट दिखाई देता है। उसमें कुछ पिक्चर्स डालते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं, कुछ क्वालिटीज उसको डालते हैं। तो ये एक बिजनेस प्रमोशन का बिजनेस का एक टूल है, ताकि हम लोगों को अट्रैक्ट कर पाएँ अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो विजुअल टूल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए होंगे उन्होंने। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स, कस्टमर प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन। एक चीज़ और कहना भूल गया हम कि ये जो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। कस्टमर को प्रमोशन किया जाता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है। ट्रेड का भी प्रमोशन होता है कि कौन से ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन वो इसको बना रही है। सेल्स ट्रेड प्रमोशन होता है इससे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि प्रमोशन केवल प्रोडक्ट का नहीं, कस्टमर को रिझाने के लिए उसकी जो ट्रेड जहाँ से वो प्रोडक्ट बन रहा है उसका प्रमोशन होता है। फर्दर उसको जो बेचने के तरीके हैं उनका प्रमोशन होता है। ये उसकी क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। इसमें जो जैसे हम कह रहे थे कि पोस्टर्स हो सकता है विजुअल टूल्स में, बिल बोर्ड्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकल डिस्प्ले हो सकता है, लीफलेट कहा था मैंने, पंपलेट कहा था। आप देख रहे हैं कि बहुत जगह आपको अभी आपको देखने को मिलेगा, शहरों में भी एक वो टीवी पैनल टाइप का बनाया है। वो कुछ उसमें वॉइस नहीं है, बट पिक्चर्स आर चेंजिंग अबाउट द प्रोडक्ट की डिफरेंट काइंड की इंफॉर्मेशन देते हुए वो स्लाइड्स बार बार मूव कर रही हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्ले या बिल बोर्ड के नाम से जानते हैं। पोस्टर्स तो हमने कहीं पेस्ट कर दिया, वो भी इंफॉर्मेटिव है, वो भी आपका विजुअल है। विंडो डिस्प्ले देखा होगा आपने। देयर इज ए वन ऑफ द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। द गोल्स आर एग्जिबिटेड इन आर्टिस्टिकली। जितना अच्छा बनाएंगे आप, विंडो में जो बनाते हैं आप अपना वो, ये विंडो डिस्प्ले वहाँ कहते हैं, जैसे आपको रेलवे में जाओ या आप वहाँ जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, वहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे विंडो के रूप में जो इंफॉर्मेटिक चार्ट्स डिस्प्ले आपको मिलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग विंडो डिस्प्ले। इनकी भी कुछ क्वालिटीज़ हैं कि ये इट शुड रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर्स ऑफ जो भी प्रोडक्ट है। इट शुड डिस्प्ले सीजनल आइटम्स, इट शुड शो द प्राइस आइटम, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन बार बार वो उसको डिस्प्ले होनी चाहिए। ये प्रोडक्ट है, कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले में मिलती हैं। विंडो डिस्प्ले की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जनरली ये डूरिंग द नाइट होता है ये डिस्प्ले वाला, चूँकि दिन में सनलाइट में कम दिखता है। हालांकि एयरपोर्ट्स एंड रेलवे में चूँकि वो कवर्ड होता है, इसलिए वो दिन में भी विंडो डिस्प्ले यूज होता है। द आइटम डिस्प्लेड इन द विंडो शुड बी चेंज फ्रीक्वेंटली। ये तो है ही है कि वो बार बार बदलते रहना चाहिए, नए नए प्रोडक्ट के बारे में रिपीटेडली शो होते रहने चाहिए। इट शुड कंटेन मूविंग ऑब्जेक्ट इफ इट इज कंपेटेबल विद द डिस्प्ले। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ना डालें जो डिस्प्ले के लायक ना हो, यानी कि ऐसी चीज़ डालें उसमें जो डिस्प्ले हो सके, लोगों को अट्रैक्ट कर सके उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में। बाकी चीज़ें बता रहे हैं, किस तरह के कलर होने चाहिए डिस्प्ले के, ये सब चीज़ें भी आप हल्का सा देख लीजिए। जैसे प्राइमरी कलर रेड है, कंट्रास्ट में ये कलर्स भी हैं जो लोगों को अच्छे लगते हैं, पिंक, पर्पल, ऑरेंज, रोज, ये सब हैं। अगर प्राइमरी कलर ग्रीन लेंगे, उसके बाद में ये कॉन्ट्रास्ट करेंगे इसके साथ, ये और उसमें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए तो एक बनाया कि किस तरह से हम कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं विंडो डिस्प्ले के लिए। जो हम टेक्स्ट यूज करते हैं, जो स्क्रीन यूज करते हैं, जो पिक्चर्स यूज करते हैं, उसमें कलर कॉम्बिनेशन का भी इम्पोर्टेंट रोल है। So, of course, there are some advantage of window display. Window display act as a silent salesman. वो सेल्समैन के रूप में काम कर रहा है अपने सेल्स के प्रमोशन के लिए। इट इज़ ए गुड मेथड फॉर एडवर्टाइजिंग। इट मेक ए ड्रग स्टोर फॉर डेकोरेटिव एंड अट्रैक्टिव, यानी कि एक डेकोरेटिव वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इट अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, कस्टमर्स
एज दे पास, जहाँ जैसे वहाँ से गुजरते हैं वो उनको अट्रैक्ट करता है। इट क्रिएट गुड इंप्रेशन ऑन द कस्टमर व्हेन ही एंटर्ड द ड्रग स्टोर। जैसे ड्रग स्टोर मीन्स जहाँ जहाँ वो, ये तो एक छोटा सा लिमिटेड किया है, जहाँ जहाँ वो लगे हैं, लोग जो लोग वहाँ से गुजरते हैं वो उसको देखते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं एंड मोटिवेट होते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए। टेलीविजन, जैसे मैंने कहा, टेलीविज़न है, रेडियो है, और भी बहुत सारे ऑडियो विजुअल मीडिया है, जैसे एफएम भी है, आपने देखा होगा बार बार वो डिफरेंट सॉन्ग्स के बीच में डिफरेंट एड एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो में भी है ये, टेलीविज़न में भी बार बार डिफरेंट काइंड के वो आते हैं, सेल्स के प्रमोशंस आते हैं कि आप ये चीज़ अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है सब। हैंडलिंग ऑफ सैंपल्स, देखिए सैंपल्स आपने देखा होगा ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा यूज करते हैं, और ये दैट टू इज इन मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स फील्ड। वो लोग एमआर डॉक्टर के पास जाते हैं और वो एक काइंड ऑफ सैंपल लेके जाते हैं, उसके बारे में उनको दिखाते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, नया हमने बनाया है, इसमें ये चीज़ें अच्छी हैं, इनको इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसको प्रॉपरली रिफाइंड किया गया एंड सो ऑन। ये सैंपल आपने देखा, दिस इज नॉट न्यू, ये भी एक, लेकिन वो सैंपल सिर्फ एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं, ताकि लोग उसको, जो हमारे जो रियल प्रैक्टिशनर हैं, दोज आर डॉक्टर्स एंड अदर्स जो हु इज डीलिंग दिस फील्ड, वो उसको प्रॉपरली उसको एक या दो सैंपल उनको प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद वो उनसे मोटिवेट करते हैं कि आप हमारे जो क्लाइंट हैं, जो आपके जो क्लाइंट हैं, उनको यही वाली मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करिए अगर ये पर्टिकुलर डिजीज, पर्टिकुलर बीमारी उनमें आप पाते हैं तो। दिस इज आल्सो वन ऑफ द गुड वे ऑफ प्रमोशन। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इन्फॉर्म द फिजिशियन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। ये सब वो हमें डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसको ओल्ड प्रोडक्ट की जगह उसको नया प्रोडक्ट का सजेस्ट करते हैं, जो डाउट होते हैं वो क्लियर करते हैं फेस टू फेस या पर्सनल सेलिंग के थ्रू। फीडबैक लेते हैं फिजिशियन से उस प्रोडक्ट के बारे में, और कुछ समय बाद जाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं कि आप हमारे इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए और फर्दर इसको एक्सटेंड कीजिए और लोगों को यूज करने के लिए मोटिवेट कीजिए। और ऑल्दो यस ऑफ कोर्स, इसमें डॉक्टर्स को भी वो सम काइंड ऑफ बेनिफिट, सम काइंड्स ऑफ पर्क, सम काइंड्स ऑफ डिस्काउंट वो प्रोवाइड कराते हैं। इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर प्रमोटिंग ए ब्रांड बाय सैंपल। ये सिर्फ सैंपल बहुत क्लियर है कि जो एक दो पीस जो लेके जाते हैं वो डॉक्टर्स के पास या जो प्रैक्टिशनर उनके पास, क्या क्राइटेरिया है? इट शुड बी मेड अट्रैक्टिव बाय यूजिंग पिक्चर्स। देखिए ऐसे ही नहीं कि आप डॉक्टर्स के पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव गए और ये पकड़ा दी ये हमारी दवाई है, नहीं। कुछ क्राइटेरिया हैं, बहुत सिंपल से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास अपना एक इंफॉर्मेटिव कार्ड हो कि वो किस कंपनी को बिलोंग करता है। उसके बाद जो वो लेके जा रहा है सैंपल, वो ऐसे ना लेके जाए, दैट शुड बी प्रॉपर पैक्ड होना चाहिए, उसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहनी चाहिए। यानी कि अगर कोई सैंपल वो डॉक्टर्स को सजेस्ट करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, तो उसका प्रॉपर इंफॉर्मेटिव लीफलेट, ब्राउचर, पम्पलेट वो भी होना चाहिए, ताकि वो उसके बारे में बता सकें और फर्दर जो उनकी क्वेरी है उनको भी रिजॉल्व करने के लिए रेडी हों। अगर उनके मन में कोई डाउट है, फिजिशियंस के मन में, तो ये सब यही है। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। यस, चूंकि हम लोग प्रिंट मीडिया को हम देख लिए, टेलीविजन को देख लिया, ऑल इंडिया रेडियो को देख लिया, प्रमोशंस में जो जो चीज़ जो हो रही हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द प्रमोशनल एक्टिविटीज़। आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट गूगल में राइट करिए और उसके बारे में पता कर लीजिए। ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रमोशन इज फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट यूज द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड in order to delivering marketing message and attract customer. Example of online advertising include contextual ad on the search engine, results page, banner ad, social network। जैसे ही आप लिखेंगे आप इंटरनेट के ब्राउजर में कोई भी चीज़, तो वो इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। और
Major result of online advertising is information and content that is not limited by the geography. Means वो हर जगह आप उसको आप अगर क्लिक करोगे सेम इंफॉर्मेशन देगा और टाइम टू टाइम वो अपडेट होता है, जो उसमें चीजें जुड़ती जाती है इस प्रोडक्ट के बारे में। कई बार क्या है कि आपको छोटी छोटी वीडियो भी मिल जाएंगे उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए। वो ऑफलाइन भी हो सकती हैं, ऑनलाइन भी हो सकती हैं। आपको चैटिंग के थ्रू थ्रू ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू आपको जो एक्सपर्ट हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखने वाले, वो भी कस्टमर के या कंज्यूमर के डाउट्स को टाइम टू टाइम रिमूव करने के लिए ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। परचेजिंग वेरिएशंस, देर आर थ्री मोस्ट कॉमन वेज in which online product is purchased are CPM, CPC and CPA। देखिए ऑनलाइन जो परचेजिंग होती है, देर आर सम प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन में। जैसे आप डायरेक्ट आप उसकी जो कंपनी की जो वेबसाइट है, वेब पर www. अगर कोई कंपनी का नाम, उसमें आप खरीद सकते हैं। या फिर बहुत सारे जो आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है और बहुत सारे जो है, अभी तो बहुत सारे हो गए हैं, इनमें भी आप चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन अगर हम इस सबको ऑनलाइन को एक बास्केट में रख दें, व्हाट आर द वे, कोई भी तरीका हो उसको, लेकिन बेसिकली जो कॉमन वेज हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट के, वो है CPM, CPC। CPM क्या है? कॉस्ट पर इम्प्रेशन। CPC कॉस्ट पर क्लिक एंड CPC कॉस्ट पर एक्शन। सॉरी। कॉस्ट फॉर इम्प्रेशन क्या है? is where advertiser pay for exposure of their message to a specific audience. CPM cost are price per thousand impressions. That M is acronyms of Roman numerical for 1000. CPC cost per visitors or cost per view, cost pop-ups, when advertiser pay the delivery of targeted visitor to the advertising website। बेसिकली इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि आपने देखा होगा कि कोई भी एडवर्टाइज चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग उसको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, शेयर करते हैं। यहाँ भी जितना ज़्यादा वो एक हमने एक ऐड दिया, पहले हमने वो पेड था, वो पेड के बाद में उसमें जब लाइक्स बढ़े, शेयर्स बढ़े, तो वो ब्रेक इवन पर आ गया। यानी कि अब जो हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो हमसे पैसा नहीं ले रही है। उसके बाद एक टाइम आता है कि वो हमको खुद को, कंपनी को वो प्रॉफिट देने लगता है, क्योंकि वो इट इज लाइक्ड बाय मैनी पीपल, 1000 पीपल, करोड़ पीपल। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑनलाइन का कि इसमें लोग जितना लाइक करते हैं, जितना उसको फॉलो करते हैं, उतनी ही कॉस्ट उसकी कम होती चली जाती है, क्योंकि उस कंपनी को दूसरे एडवर्टाइजिंग मोड से उसको फायदा होना शुरू हो जाता है। CPC कॉस्ट पर क्लिक इज नॉन एज pay per click. Advertiser pay every time a user click on listening and redirected to the website. They are not actually pay for listening, but only when the listening it click. The system allow advertising specialists to refine, search, and gain information about their market. Under the pay per click pricing systems, advertiser pay for the right to be used under a series of target reach that direct relevant traffic to the website। बेसिकली ये आपकी जो ऑनलाइन की जो प्लेटफॉर्म है, उन्हीं के बारे में बता रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम कोई भी कंपनी किस तरह से एडवर्टाइजमेंट देती है, किस तरह से उनको एडवर्टाइज करने के लिए पे करना पड़ता है। फर्दर मैंने कहा कि जैसे जब ज़्यादा उनके बढ़ जाते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे डिफरेंट एक्शंस होते हैं। ये तो तीनों एक्शंस को आप एक बार देखिए: फ्लोटिंग एड, एक्सपेंडिंग एड, पोलाइट एड, वॉलपेपर एड, ट्रिक बैनर, पॉपअप्स, पॉप अंडर, वीडियो एड। ये एडवर्टाइजमेंट के तरीके हैं कि हम बीच बीच में किस तरह से फ्लोटिंग एड आएगा, या एक्सपेंडिंग एड आएगा, या पोलाइट एड आएगा, या वॉलपेपर एड आएगा। ये कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी सीरीज है, कोई भी मूवी है, या कोई भी चैनल है, इसके बीच में जो ऐड के तरीके हैं वो किस तरह से कंपनी अपना ऐड देती है। दीज आर द टाइप्स ऑफ ऐड। फ्लोटिंग ऐड हो सकता है, एक्सपेंडिंग ऐड, ये सब टाइप ऑफ एड्स हैं। Affiliate marketing is a one of the online tool where advertiser
place campaigning with the potentially large number of small and large publishers जो भी है, whom are only paid media fees when traffic to the advertiser is garnered, and usually upon a specific measurable campaign result, a form, a sale, a sign up, etc. Today this is usually, जो हमने तीन तरीके बताए थे, CPA एंड CPC एंड CPM, उन्हीं के बारे में ये बता रहा है ये। जन कॉन्ट्रेक्चुअल एडवर्टाइजिंग होता है जिसमें हम अपने किसी भी जोग्राफिकल एरिया को साथ जोड़ते हुए जब हम ऐड करते हैं, यानी कि उसको दो दो चीज़ों में कॉन्टेक्स्ट करते हैं हम लोग कि ये पर्टिकुलर चीज़ इस एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिली एरियाज में, सॉरी, जो आपके साउथ में हम कोकोनट के साथ हम लोग उसको कॉन्टेक्चुअल कर दिए, हिली एरियाज में हम लोगों ने रुद्राक्ष को या और चीज़ों को जोड़ के कर दिए। तो इस तरह के जो ऐड हैं वो वहाँ की जो जोग्राफिकल चीज़ है उसको भी साथ साथ, कश्मीर में हमने फ्लावर्स को साथ जोड़ दिया। एड्स एंड मालवेयर, आप ये जानते होंगे कि बीच बीच में कुछ अनवांटेड भी आते हैं जिनको हम लोग ट्रोजन कहते हैं, स्पाईवेयर कहते हैं या एडवेयर कहते हैं। इनको बीच बीच में जो आते हैं उनको दे आर नॉट गुड, तो कंप्यूटर सेवी भी नहीं है वो, इसलिए उनको, इसके लिए हम बचने के लिए हम लोग अपने कंप्यूटर में एक वो सेफ्टी सॉफ्टवेयर भी डालते हैं जिससे हमारे बीच बीच में ये सब चीज़ें ना आ पाए जो अनवांटेड हैं, जो हमारे किसी भी यूज के नहीं हैं। अदर प्रमोशनल मटेरियल्स किस हैं? देखिए, अब तक जो हम पढ़ रहे थे, हम लोगों ने लीफलेट पढ़ा, यानी कि वन वे वाला पढ़ा, देन टू वे ऑडियो विजुअल भी पढ़ा, कुछ और भी हैं डायरेक्ट मेल। जैसे हम लोग, हमारे पास कुछ ईमेल आईडीज और एड्रेस हैं, हम लोग डायरेक्ट उनको ईमेल कर देते हैं, डायरेक्ट उनको एनक्लोज कर देते हैं उन इंफॉर्मेशन को, लीफलेट को SMS भी भेज सकते हैं, तो डायरेक्ट मेलिंग में आता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट में हम लोग 1 to 1, जैसे हमने ग्रुप को डाल दिया डायरेक्ट मेलिंग में, तो यहाँ 1 to 1, एक सेलर है, एक बायर है, सेलर एक ही बायर को मेल भेजेगा, चूंकि उसके पास उसका पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, वो SMS भी भेज सकता है, मेल भी भेज सकता है। हालांकि जो पर्सनल सेलिंग में यही इम्पोर्टेंट होता है, दिस वन, पर्सनल कॉन्टैक्ट और डिटेलिंग, ये इसको हम बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। पर्सनल, चूंकि पर्सनल सेलिंग को बेस्ट वे ऑफ सेलिंग बताया गया, तो इसके वही सब फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फॉर द फॉलोइंग रीजन्स प्रेफर, क्यों रीजन करती हैं वो भी हमने बताया कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फिजिशियन को नए प्रोडक्ट के बारे में बताने में, ओल्ड को रिफ्रेश करने में, डाउट क्लियर करने में, फीडबैक ऑब्टेन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए प्रोडक्ट के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये दोबारा रिपीट हुआ है। ये है आपका 8 यूनिट सम अप हुआ यहीं पर। ये क्विकली, चूँकि टाइम कम है अभी, थोड़ा सा हम उसको भी, जो नेक्स्ट है उसको भी कवर करने का। यस, ये बेसिकली अब तक हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट को किस तरह से डिलीवर किया जाए, किस तरह से सेल किया जाए, कौन उसको खरीदेगा, क्या उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उसके वेज होने चाहिए, किस तरह उसका उसका प्रमोशन करें, उसकी मार्केटिंग करें। दिस यूनिट टॉक अबाउट फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट लॉन्च। कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की लॉन्चिंग किसी कंपनी के द्वारा, किसी फर्म के द्वारा किस तरह से होती है, कौन कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस है। सो वी विल टेक ओवरव्यू या क्विकली। Product launch is an event in the selling procedure that influence the success rate of marketing of a product. It is an essential thrust given to the product which helps to prolong the product life of cycle.
कितना वो प्रोडक्ट हमारा कितना बिकेगा, कितना प्रॉफिट होगा, सारे पहले से हम लोग प्लान कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस द प्रोडक्ट गेट ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द चैनल मेंबर्स, होलसेलर्स, स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स। जब भी कोई प्रोडक्ट की लॉन्च होगी तो इन सब को प्रॉपर इंफॉर्मेशन भेजने का एक कोशिश होगी, चाहे वो उसमें होलसेलर हो, स्टॉकिस्ट, रिटेलर हो, कंज्यूमर हो। प्रोडक्ट लॉन्च के समय ऐसा हम लोग एज ए कंपनी, एज ए फर्म मैनेजर हम लोग डिसाइड करते हैं। इट हेल्प टू पेनिट्रेट वेरी डीप इनटू द मेमोरी ऑफ द यूजर। जब भी किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो लॉन्ग टाइम तक वो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के, रिटेलर के या फिर होलसेलर के माइंड में हमेशा रहती है। द वे ऑफ ए रॉकेट इज लॉन्च फ्रॉम ए लॉन्चिंग पैड to outer space to achieve a particular orbit, and the initial thrust determine the distance it will travel. The same mechanism works in the, देखिए जब हम एक एग्जांपल दिया है इसमें कि जब हम रॉकेट को हम उड़ाते हैं और हमें ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि आउटर स्पेस में जाकर के उस पर्टिकुलर जो हमने ऑर्बिट बनाया है अपने उसमें प्लान में, उस ऑर्बिट में जाकर के वो सैटेलाइट, वो रॉकेट लॉन्च हो जाए इतनी जितनी डिस्टेंस हमने एज्यूम की है। यही सेम मैकेनिज्म हमारा प्रोडक्ट लॉन्च में होता है कि हम पहले से हम लोग सेट करते हैं हम लोग टारगेट कि हम प्रोडक्ट लॉन्च में हम लोग अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को, अपने जो रिटेलर, जो स्टॉकिस्ट है, जो स्टॉक रखते हैं, उन सबको हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम लॉन्च करते हैं तो हम एक बहुत बड़े मास को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। बेसिकली क्या क्या फेज है इनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रोडक्ट लॉन्च के लिए पहला फेज जो आता है वो आता है प्री लॉन्च एक्सरसाइज। देयर आर 4 फेजेस। किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च के लिए 4 डिफरेंट फेजेस हैं, जिसमें पहला है प्री लॉन्च एक्सरसाइज। अभी हमने लॉन्च नहीं किया है तो बहुत सिंपली आप समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हमें सबसे पहले जो हमारा जो मेन जो सेंटर पर जो सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कस्टमर, कंज्यूमर, और जो आप उसको जो उसको एक्चुअल यूजर है उसको ध्यान में रखते हुए हम सारी चीज़ों को हम लोग डिसाइड करेंगे। एक दूसरा हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल हमको कहाँ से मिलेगा। तीसरा जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी कैसी होगी, कहाँ से हम उसको लें कि बेस्ट क्वालिटी का हमें रॉ मटेरियल मिले। चौथा होगा कि जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो बनाएंगे, क्या वो हाइजीनिक भी होगा नहीं होगा उसका प्रोडक्ट जो बनेगा, या वो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों की जो इंफॉर्मेशंस, गैदरिंग ऑल इंफॉर्मेशंस अबाउट रॉ मटेरियल एंड द एक्चुअल यूजर्स, ये हमारा प्री लॉन्च एक्सरसाइज है। ये इसमें डिटेल में आपको बताया है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंक्लूड ऑल मेडिसिन यूज अगेंस्ट द वेरियस डिजीज बोथ। जैसे फार्मास्यूटिकल्स का बताया कि कोई हमें दवाई बनानी है, उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि वो कहाँ से मिलेगा। हमारा रॉ मटेरियल पे प्लांट से मिलेगा। प्लांट को मेडिसिन बनानी तो प्लांट्स कहाँ से मिलेंगे, उन प्लांट को काटने पे कोई मतलब सोशल और गवर्नमेंट ये तो नहीं है, ऑब्लिगेशंस तो नहीं है, कोई हार्म तो नहीं होगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें प्री लॉन्चिंग एक्सरसाइज में करनी पड़ती हैं। प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, उसको अगर हम कुछ प्रॉफिट के साथ बेचें, 10% प्रॉफिट के बाद बेचें या 20% प्रॉफिट के साथ बेचें, तो कितना हमको कॉस्ट प्राइस रखना पड़ेगा, उसका कितना सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग प्री लॉन्च के समय हम लोग डिसाइड करते हैं एज ए मैनेजर। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं। फार्मास्यूटिकल, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर परचेज बाय द कस्टमर on advice of the physician except the OTC product, ये this one the refer the product doctors who is like highly learned and not easy to convince, replace consumers goods, the product are purchased as per the liking of the customer। ये क्वालिटीज बताई हैं। तो ये किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब हम लॉन्च करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमने कहा कि पहले रॉ मटेरियल के बारे में जाने, उसके बाद जो खरीदार है उसका एटीट्यूड के बारे में जाने,
और उसको हम कैसे बेचेंगे ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जैसे कि डॉक्टर के बारे में बताया कि हमें सबसे पहले कुछ कंसिडरेशन लेनी पड़ेंगी। कौन कौन सी स्पेशल कंसिडरेशंस हैं कि हमारे प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाएगा। सबसे पहले एमआर हमारा डॉक्टर को ब्रीफ करेगा उनके प्रोडक्ट के बारे में, और ये एज्यूम किया जाता है कि डॉक्टर जो भी दवाई बताएंगे पेशेंट को वो उसको लेगा, जो भी दवाई प्रेस्क्राइब करेंगे वो उसको लेगा, चूँकि डॉक्टर वेल एक्सपीरियंस है। कंज्यूमर्स के बारे में बताया है कि कंज्यूमर वही चीज़ खरीदेगा जो उसको, वो कौन बताएगा, वो बताएगा आपका पर्सनल सेलिंग जो कर रहा है उनकी क्वालिटी बताएगा। तो ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 को, फेज़ 1 यही है। इन दिस फेज स्टडीज conducted to determine the pharmacokinetic differences between human and animals, and to ascertain the safe and tolerated human dose non blind involving 22। सबसे पहले हम लोग हमने जो रॉ मटेरियल देख लिया, ये सब चीज़ देख ली, तो सबसे पहले जो हम फेज़ 1 जो हम, आपने देखा होगा कोविड-19 के समय में जो हम लोगों ने इंडिया ने जो वैक्सीन बनाई, उसके लिए भी जो डिफरेंट फेज में गुजरने के बाद वो वैक्सीन मार्केट में आई। सो पहला है कि उसका ट्रायल हम, सबसे पहले ट्रायल हम एनिमल्स पर करते हैं। हालांकि ये सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है कि एनिमल पे ही क्यों करते हैं हम लोग, बट सबसे पहले हम लोग जो कोई भी इस तरह की जो वैक्सीन बनाते हैं या कोई मेडिसिन बनाते हैं, उसको हम लोग पहले एनिमल पे करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग उसको जो 20 से 25 से जो वॉलेंटियर होते हैं, हेल्दी वॉलेंटियर, यानी उसके बाद ह्यूमन उसको टेस्टिंग करते हैं। जिसके बाद सेकंड फेज आता है। सेकंड फेज में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वो बढ़ा देते हैं हम लोग, जो वॉलेंटियर्स हैं। हमने लगा कि 20 से 25 लोगों पे हमने इस्तेमाल किया, 20 से 25 लोग हार्म नहीं हुए, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर हम संख्या बढ़ा देते हैं, इसको हम 50 से 300 कर दिया, या अगर हमने 20 लिए हैं तो 20 से 200 कर दिया। तो हम मल्टीपल रेट में उसको बढ़ा देते हैं, और उनके साइड इफेक्ट को हम लोग एनालाइज करने के, पॉजिटिव एंड साइड इफेक्ट को हम लोग एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। फेज थर्ड है, इट इज ए मल्टी सेंटर टेस्ट कंडक्टेड। इसको हम लोग क्या करते हैं, और संख्या में बढ़ा देते हैं, और डिफरेंट काइंड के डीएनए के लोगों पर हम उसको यूज करते हैं, ताकि हम लोग देख सकें कि उसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं। फेज फोर्थ है कि अब हमारा जो है वो एक तरह से रेडीली है, तैयार है, आपका जो ड्रग है या जो वैक्सीन है या जो आपकी टैबलेट है। फिर इसको हम ओवर द पीरियड हम लोग इसको, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज हमने वैक्सीन बनाई कल को इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, नो। इसको हम उन्हीं फेज 1, फेज 2, फेज 3 को बार बार रिपीट करते रहेंगे, और इसको हम 2-3 साल तक या और लंबे टाइम तक इसको हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये किस तरह से हमारा इफेक्टिवली काम कर रहा है, ये ड्रग, ये टैबलेट, ये सीरम, या ये कोई भी जो हमने वो बनाया है, वैक्सीन बनाई है। उसके बाद हम इसको आफ्टर मैनी ईयर इसको हम लोग लॉन्च करते हैं मार्केट में। तो ये लॉन्चिंग का प्रोसेस है कि किस तरह से हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम अपना लॉन्च करते हैं। न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, वही प्रोडक्ट है जो पहला प्रोडक्ट है, उसमें कुछ अगर हमने चेंज किया, या कुछ नई टेक्नोलॉजी, या कुछ नई डिजीज के लिए, या नई सर्विस के लिए हमने जो कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, तो वो मार्केट में नए प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो पहली बार उस पर्टिकुलर नाम के साथ वो लॉन्च हो रहा है। द प्रोडक्ट लॉन्चिंग ग्रुप, इस प्रोडक्ट को कोई एक व्यक्ति नहीं लॉन्च कर रहा है, इसको एक पर्टिकुलर ग्रुप इसको लॉन्च करता है, जिसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर होता है, प्रोडक्ट मैनेजर होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर होता है, जो तो ये सारे लोग मिलकर के प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। मीडिया के सामने भी कर सकते हैं, या किसी काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस के रूप में कर सकते हैं, या काइंड ऑफ सेमिनार के रूप में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। बाकी फर्दर इसको डिफाइन किया, प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है, जो होल प्रोडक्शन को डील करता है, देखता है, वो प्रोडक्ट मैनेजर होता है। वही रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, वही प्रोडक्शन के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं, उनको भी सुपरवाइज करता है। एंड फर्दर उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद उसके फर्दर डिलीवरी तक वही प्रोडक्ट मैनेजर काम करता है। एमआर का रोल, प्रोडक्ट बनने के बाद जब वो बास्केट में आ जाता है, उसके बाद एमआर का या अदर्स जो सेल्स मैनेजर्स उनका रोल स्टार्ट हो जाता है। एमआर को बार बार बताने की जरूरत नहीं, उसको हम बहुत बार
डिफाइन कर चुके हैं, चूंकि एमआर ए पर्सन है जो पर्सनल डीलिंग करता है, जिसका डॉक्टर के साथ और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या स्टॉकिस्ट के साथ बार बार उसका वो होता है, निगोशिएशन भी होता है, कांटेक्ट भी होता है, और नए प्रोडक्ट को जो लॉन्च के बाद जो उसको डोर स्टेप तक पहुंचाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज लाई ऑन एमआर। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसको डॉक्टर के पास, स्टॉकिस्ट के पास, रिटेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर सबके पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पहुंचाता है। डेवलपमेंट ऑफ द प्रमोशनल एड्स। प्रमोशनल एड्स को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किस तरह के प्रमोशनल एड्स हैं, बार बार हम लोग इसको नहीं। कंपीटिंग प्रोडक्ट, इसको भी हम देखें कि एक भी मार्केट में आप दो अगर नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, दोनों सेम, सपोज करिए दोनों ही दो टैबलेट बाजार में आई हैं, दोनों ही फीवर के लिए काम कर रही हैं, क्रोसिन भी है या फिर और कोई दूसरी टैबलेट आई है, तो वहाँ कॉम्पिटिटिव होता है, दोनों में कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग होती है, और वहाँ दोनों की दोनों कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करती हैं, उनको हाईलाइट करती हैं अपने अपनी क्वालिटी का। तो यही है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। बार बार उसको चीज़ों को बताएंगी, एमआर जाकर के डॉक्टर को बताएगा, यस ये जो प्रोजेक्ट है या हमारा जो प्रोडक्ट है वो उस प्रोडक्ट से इन तरीके से बेहतर है, हमारी कॉस्ट लो है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं, हमारे जो इसको यूजर्स हैं उन्होंने इसको यूज किया, उनको नेगेटिव चीज़ें बहुत कम मिली हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो पर्सनल सेलिंग को। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टॉकिस्ट। स्टॉकिस्ट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं, आपको हम बता दें, क्योंकि जो चीज़ों को अपने पास स्टॉक में रखता हो, फर्दर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, इन द टू द सोसाइटी एंड टू द इवन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भी स्टॉकिस्ट से मार्केट लेकर, और स्टॉक सबसे पहला हो गया आपका होलसेलर हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, फिर उसके बाद में स्टॉकिस्ट होगा, देन रिटेलर होगा। तो दिस इज चैन। इस चैन के बीच में बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बहुत सारे और भी जो लोग हैं इन्वॉल्व हैं, वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट हॉल फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल यही है, पहला एक होलसेलर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन स्टॉकिस्ट एंड देन रिटेलर। और इन सब के अपने अपने रोल्स एंड जॉब्स हैं, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सब के सेट नॉर्म्स हैं, किसको कौन सी ड्यूटी असाइंड है, कि इनको क्या क्या करना है, सबके सबके डिसाइड, इनको हम पहले से पढ़ लिए हम। प्रोडक्ट लॉन्चिंग मीटिंग बिल्कुल सिंपल है, आप इसको ऐसे देख लीजिए जैसे किसी फिल्म का कोई अगर लॉन्चिंग होना है तो उससे पहले जो मीटिंग होती है प्रोडक्ट की, उसके बारे में बताया जाता है, उसके किस तरह से वो काम करेगा सोसाइटी में, किस तरह कहाँ से अवेलेबल होगा, उसमें सारे लोग होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, मार्केटिंग मैनेजर होगा, रिटेलर्स होंगे, कुछ कुछ फिजिशियंस होंगे, कुछ लोकल लोग होंगे जो उस प्रोडक्ट को सोसाइटी में, मार्केट में उसको लॉन्च करेंगे। यही है आपकी मार्क। टाइप एंड नेचर ऑफ मिडल मैन। मिडल मैन आप पढ़ ही चुके हैं। मिडल मैन मीन्स एजेंट कह लीजिए उसको, या दो लोगों के बीच में जो सेलिंग को एग्जीक्यूट करता हो, सेलिंग को सक्सेसफुल कराता हो, वही मिडल मैन है। मिडल मैन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, इवन मिडल मैन समटाइम्स स्टॉकिस्ट एंड सेलर भी हो सकता है, कि दो लोगों, फर्म के और कंज्यूमर के बीच में जो भी लोग काम करते हैं वो मिडल मैन होते हैं। आपने देखा होगा कोई LIC की कोई पॉलिसी है, वो कस्टमर तक पहुंचनी है, उसमें जो LIC एजेंट है हु इज मिडल मैन। आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट में किसी कंपनी ने कोई ड्रग बनाया और उस कंपनी के ड्रग को कस्टमर तक पहुंचाना है, तो वहाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपका मिडिल मैन हो गया। तो ये सिंपल है। ये डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जिनके सप्लायर्स हमने पढ़े हैं, ट्रांसपोर्टर्स पढ़े हैं, मैन्युफैक्चरर्स पढ़े हैं, इन सब के क्या क्या रोल्स हैं एक चार्ट में। हालांकि इन सबको हम पढ़ चुके हैं, इसको हम लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में। डिफरेंट टाइप ऑफ मिडिल मैन, ये मर्चेंट मिडिल मैन है, एजेंट हैं, फैसिलिटेटर हैं,
ये भी कुछ नया नहीं है, सब वही है। जो डिफरेंट डिफरेंट फर्म में जो लोग काम करते हैं उसके नाम अलग अलग हैं, बट दोनों का सबका जॉब, सबका काम एक ही है। जो लोग गुड्स में देखते हैं, या जो आपका जो इसमें जहाँ पे हैवी प्रोडक्ट होते हैं उनको मर्चेंट मिडलमैन कहते हैं। एजेंट जो दोनों के बीच में परचेजर एंड बायर एंड सेलर के बीच में जो लोग काम करते हैं उसको एजेंट बोलते हैं। फैसिलिटेटर वो होता है जो बेसिकली फैसिलिटेट करता है चीज़ों को, जिसमें ट्रांसपोर्टर हो सकता है, वो मिडिलमैन नहीं है। वो बैंक्स हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं दोनों को, बेचने वाले को भी फैसिलिटेट करते हैं, खरीदने वाले को भी। चैनल लेवल्स, ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल्स बताए हैं आपको कि चैनल वही है, होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या स्टॉकिस्ट है या रिटेलर है। दीज आर द चैनल्स, और उस चैनल पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड की एक्टिविटी। फैक्टर डिटरमाइन द लेंथ ऑफ चैनल, इनके लिए बेसिकली मार्केट, अगर बहुत बड़ी मार्केट है तो ये सारे के सारे मैक्सिमम चैनल चाहिए। छोटी मार्केट है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर शॉप से ही चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही हैं। मान लो सपोज करिए एक छोटे से स्टार्टअप शुरू हुआ, उसमें कुछ चीज़ें बनाई, तो वो पूरे पैन इंडिया में अपनी चीज़ों का प्रमोशन नहीं कर पाएगा। पर्टिकुलर प्लेस पर अपनी चीज़ें, तो यहाँ पर बहुत सारे जो चैनल है वो ख़त्म हो जाएंगे। ऑर्डर साइज, कितना ऑर्डर साइज कर रहे हैं, जितना ऑर्डर साइज होगा उतने ही लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। सर्विस रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट वैरायटी, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ये फैक्टर्स हैं जो आपके चैनल्स को डिसाइड करेंगे। फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, वो तो आपने, फर्म है, फर्म में जो मैन्युफैक्चर है, देन स्टॉकिस्ट है, होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है, ये सब। लेकिन ये भी लेवल के ऊपर डिपेंड है। बड़ा लेवल है तो ये 5 लोग होंगे, थोड़ा एक छोटा होगा तो इसमें आपने देखा कि स्टॉकिस्ट खत्म हो गया, और छोटा हो गया तो मैन्युफैक्चर, रिटेलर, कंज्यूमर, सीधा मैन्युफैक्चर एंड कंज्यूमर पे ही आ गया। देन मैन्युफैक्चर एंड ये एजेंट। इस तरह से ये डिसाइड करता है आपका जो लेवल ऑफ बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितनी बड़ी फर्म है, उसके अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के। इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, कई बार बड़े लेवल पर चीज़ें खरीदते हैं। आपने देखा ही होगा कि हमें एज ए फर्म, हम किसी दूसरी फर्म से डायरेक्टली बहुत बड़े लेवल पर चीज़ें खरीदते हैं। रेलवे खरीदता है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स खरीदते हैं, छोटे छोटी चीज़ ना खरीद करके बल्क में खरीदते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर। जैसे आपके कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, वो बहुत सारे कंप्यूटर्स खरीद लेगी अपने एम्प्लॉय के लिए। दिस इज द इंस्टीट्यूशनल बायर। फॉलोअप वही है कि जब कोई प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करते हैं, उसको अपनी कंपनी से अपने कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो बीच बीच में हम अपने कस्टमर से, अपने जितने भी हमारे चैनल हैं उन सब के साथ बराबर फॉलोअप करते हैं, ताकि हमारी सेल्स बढ़ती रहे, सेल्स में कोई डिक्लाइन ना आए। यही है आपकी फॉलोअप। सो अगर आपका, मुझे लगता है आज हमारा पूरा 8 बज गया है। यस, कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, पूछिएगा। अदरवाइज मेरी तरफ से आपके ये तीनों यूनिट का ओवरव्यू पूरा हुआ। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।